Hello students, today we are going to learn about goals of software engineering and generic view of software engineering. Okay, so let's start with goals. Friends, we already discussed so many times about the software and software engineering. Okay, its characteristics, its application. Okay, sorry. Now whenever you learn some particular subject, that time just keep in mind, so that particular subject have some motive. In software engineering, what is the motive? Just try to think twice time कि why this subject introduced in your syllabus. Just because, see, there are two way you can develop the software. Either you can use without any kind of strategy, you can develop the software, it's fine. Secondary matter, second manner is what? Ki you can approach the systematically and strategical approach you can implement during the software development. What is the difference between them? Okay, just consider, हमारे पास दो टाइप की कंपनी है, एक लोकल कंपनी एंड दूसरी एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी. दोनों के दोनों अगर सेम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दे आर डेवलप वन सॉफ्टवेयर फॉर अ मेडिकल स्टोर. एक मेडिकल स्टोर है जिनके लिए ये दोनों के दोनों सेम रिक्वायरमेंट के साथ सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं. इमेजिन कीजिएगा, जस्ट ट्राई टू इमेजिन व्हाट आई वांट टू से. लोकल कंपनी ने रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई किया, फंक्शनैलिटी को आइडेंटिफाई किया, थोड़ा बहुत प्लान किया और सपोज उन्होंने कोट किया 60,000 और उन्होंने कमिट किया कि दे विल सबमिट और दे विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट विद इन the 6 month of the period. ओके, 6 month ऑफ द पीरियड, इसको आप थोड़ा समझिएगा. सेम रिक्वायरमेंट, सेम डेवलपमेंट डेवलप्ड बाय द एमएनसी कंपनी. एमएनसी कंपनी ने पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट देखा, नीड को समझा, देन रिसोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ आइडेंटिफाई किया और उन्होंने जो है कोट किया, टोटल कोट किया 1,50,000 रुपीज एंड टाइम पीरियड विल बी more than 9 to 10 month. Now see the difference. As a customer as a client का point of view से देखो, आप कहाँ पे जाओगे? 6 month लोकल कंपनी के पास जाओगे या 9 to 10 month 1,50,000 वाले के पास जाओगे? थिंक ऑन इट. क्या सोचोगे बताओ? Confused? Obviously. Let me explain properly regarding that. What happened with what are the difference, basic difference between the development in local company and what are the difference between the MNC, multinational company? See, in local company, what they having the actual scenario, they just conduct the need, gather the requirement, and they will follow their method and their resource what they having. मतलब कंपनी के पास जो रिसोर्सेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बेस्ड पे वो लोग डेवलपमेंट चालू करेंगे. They didn't having any future planning, future enhancement, okay,
क्या प्रॉपर रिसोर्स लगेंगे, दे डिडंट इवन फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन. Tentatively they will give the deadline timeline to their client कि भाई इतना टाइम के अंदर हम कंप्लीट करके देंगे, विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी स्ट्रेटेजी. एंड बिलीव मी, वो लोग काम करके देंगे भी, वो लोग सबमिट भी करेंगे और लो कॉस्ट में क्लाइंट को काम करके भी देंगे. ठीक है, अब यहाँ पे रुक के कहाँ पे जाते हैं, एमएनसी कंपनी के अंदर. एमएनसी कंपनी के अंदर कितनी प्रोसीजर होती है वो समझो. MNC company first they will conduct a meeting with the system analyst from the client side, जिसको पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर जो जो जिनको सॉफ्टवेयर बनाना है और जिसको इसके पूरी आइडिया है, उसको बुला के उनके साथ मीटिंग करेंगे, क्वेश्चनरी जनरेट करेंगे, ओके, इंटरव्यू टाइप ऑफ पूरा नोट डाउन करेंगे, exactly point to point they will notate the things regarding the requirement, okay, exactly what expect a client what expect from the software, which kind of report he or she needs, okay, which kind of special expectations or special behavior of the software or special functionality from the software they expect, everything they are noted. Then MNC company have a system analyst, एक पोस्ट होता है सिस्टम एनालिस्ट. वो क्या करेगा, रिक्वायरमेंट को गैदर करने के बाद वो रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करेंगे. एनालिसिस के अंदर क्या होगा कि भाई जितने भी नीड्स है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे रिसोर्स के साथ मैच करता है कि नहीं. अगर नहीं करता है तो उसके अल्टरनेटिव फाइंड करेंगे, क्लाइंट के साथ वापस डिस्कस करेंगे, नेगोशिएट करेंगे एंड देन मूव है. देन नेक्स्ट स्टेप आएगा, गैदरिंग के बाद, एनालिसिस के बाद आएगा, एमएनसी कंपनी की बात कर रहा हूं, उनके पास नेक्स्ट फेज रहेगा कि रिसोर्स, कितने रिसोर्स लगेंगे, कौन सा हार्डवेयर सुटेबल होगा, कौन से टूल्स इंप्लीमेंट होगा, वो पूरा प्री प्लान होगा. उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन इज अ मेन थिंग इन एमएनसी कंपनी. हम हमारे रॉफेल बीसीए के अंदर 6 सेमेस्टर के अंदर वही अप्रोच लगाते हैं जो कि एमएनसी कंपनी में होता है, वही अप्रोच हम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या होता है, क्लाइंट की डिटेल, कंपनी का प्रोफाइल, क्लाइंट की नीड्स, नेगोशिएट एग्रीमेंट्स, फ्लो चार्ट, डेटा फ्लो diagram, UML diagram, okay, and all the things, what are the software requirement, what are the hardware requirement, okay, ये सॉफ्टवेयर कौन से सिस्टम पे चल सकता है, कौन से सिस्टम पे नहीं चलेगा, everything are specified in the documentation. So that is only the reason why it will take too much time comparatively local company, and cost is also increased. But what is the difference between develop the software in a local company and develop the software in a MNC company? क्या difference है, quality. You can't expect too much quality from the local company, but in the same way you can expect the quality from the MNC company. Why so? Just because वो जो वे जो है वो एक एक चीज जब कोडिंग करते हैं तो कंपनी के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, ताकि कल उठ के अगर कोई डेवलपर छोड़ के चला जाता है कंपनी, तो बिकॉज ऑफ कंपनी का स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड एंड फ्रेमवर्क है, वो कोई नया प्रोग्रामर आएगा उसको सिखाएंगे फ्रेमवर्क तो इजीली वो उसके साथ सेट हो जाएगा. लोकल कंपनी में क्या होगा, क्योंकि वो लोग कोई स्टैंडर्ड ही फॉलो नहीं करते हैं, सीधा कोड करना स्टार्ट कर देता है. अगर वहां पे कोई छोड़ के गया तो कितना सारा टाइम दूसरे नए डेवलपर को ही लग जाएगा उसको समझने के लिए. ओके, सो दिस इज व्हाट द मेजर डिफरेंस बिटवीन द लोकल कंपनी एंड एमएनसी कंपनी. नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द मेजर गोल. अब आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी ये गोल समझने के लिए.
अब देखिए, one of the major goal of software engineering is to reduce the cost and time. Reduce the cost and time is a major factor. If you are not able to submit your project within the time, the client will never leave you. आपको पूरा परेशान कर देगा. और दूसरी चीज, अगर आप एमएनसी कंपनी में हैं तो देर आर आईटी एंड साइबर लॉज आर अफेक्टेड. लेट मी गिव यू द एग्जांपल ताकि आपको फ्यूचर में समझ में आ जाए. एग्रीमेंट होता है, ई एग्रीमेंट. अब जब आप आउटसोर्स करते हो तो एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड होता है कि अगर आप टाइम के अंदर प्रोडक्ट को सबमिट नहीं कर पाए तो देयर इज अ प्रोविजन फॉर 20% पेनल्टी. ये आपको कोई नहीं बताएगा, कोई कॉलेज में आपको नहीं समझाएगा इतना टेक्निकल एस्पेक्ट, क्योंकि इसके बारे में किसको समझ में भी तो आना चाहिए, है ना. तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. 20% पेनल्टी लगेगा जो भी ओवरऑल सॉफ्टवेयर कॉस्ट के ऊपर. ठीक है. तो दिस इज मेन फंडामेंटल थिंग during the development. Cost and time is major effect on the development. Okay, so it enhances to increase the productivity. This is the first main goal of software engineering. ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेन गोल. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को क्यों फॉलो करें? क्योंकि हमें स्ट्रेटेजिकली सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है. लोकली तो कोई भी डेवलप कर सकता है. चलो एक एडिटर ले लिया, डेटाबेस ले लिया, कोडिंग कर दिया, यहाँ से वहां डेटा ट्रांसफर हो रहा है, आप इमेज डिस्प्ले करा दिए, कंटेंट को फॉर्मेटिंग कर दिया, वो भी सॉफ्टवेयर जैसा ही दिखेगा, वो भी अच्छा ही दिखेगा. लेकिन जब रिवर्क आएगा ना, तब आप उसके अंदर करेक्शन नहीं कर पाओगे, तब बहुत डिफिकल्टी होगी. दैट्स मेक्स द सेंस. चलो नेक्स्ट गोल पे जाते हैं. डेवलपिंग हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर इज अनदर फंडामेंटल गोल. ऑब्वियसली जब सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो क्वालिटी इज द फर्स्ट requirement. Without quality, it's not, no one can accept your software, because today quality is one of the main mantras of the any business. Obviously some of the quality factors that should have. अब क्वालिटी फैक्टर के अंदर क्या क्या आता है वो समझो. 1-2 मार्क का क्वेश्चन के अंदर आएगा आपको, व्हाट आर द गोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है what are the factors affect to the quality of software. तब हमें क्या लिखना है? reliability, correctness, readability, reusability, extensibility, flexibility and efficiency. Obviously, so these are the factors that affect the quality. I hope आप सबको समझ में आएगा. अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यू कैन मैसेज मी. ओके, एंड वेरी सुन वी विल आल्सो कंडक्ट द ऑनलाइन सेशन फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. या frequent asked question for generic view of software engineering. ये आपको आना ही है. इसके अंदर से कम 7 to 10 मार्क्स का 100% आने वाला है. आपको इसको थॉरली प्रिपेयर करना है. ओके, आई विल गिव यू द मटेरियल. आई विल गोइंग टू अपलोड द मटेरियल इन अ पीडीएफ फॉर्मेट. Afterwards you can start preparation for the software engineering. ओके, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप मेरे लेक्चर को फॉलो करोगे, मटेरियल को रीड करोगे, आई गिव यू द गारंटी आप 100% पास हो जाओगे. ओके, चलो आगे चलते हैं. जेनेरिक व्यू. ये जेनेरिक व्यू क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक पर्सपेक्टिव डिफाइन किया गया है, अलग अलग फेज डिफाइन किया गया है, और वो फेज को हम नेक्स्ट में स्टडी करने वाले हैं. लेकिन पहले तो ये समझ लेते हैं कि भाई ये जेनेरिक व्यू क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, व्हाट इज द एक्जेक्टली टर्म ऑफ इंजीनियरिंग. लेट्स फोकस. Engineering is analysis, design, construction, verification and management of technical entities. Okay, एनालिसिस यानी कि किसका एनालिसिस? रिक्वायरमेंट और क्लाइंट की नीड का एनालिसिस. डिजाइन क्या होता है?
तो डिजाइन इंटरफेस का भी होता है, मॉड्यूल का भी होता है और डेटाबेस का भी डिजाइन होता है, वो डिजाइन। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंस्ट्रक्शन यानी कि डेवलपमेंट, कोडिंग, लाइन ऑफ कोड टू बिल्ड अ प्रोडक्ट, रियल टर्म डेवलपमेंट, उसे क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्शन। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन मीन्स वॉट एवर द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द क्लाइंट, कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ रह नहीं गया, कुछ मिसिंग तो नहीं है, ओके तो ये सब कुछ का वेरिफिकेशन होता है। एंड मैनेजमेंट मीन्स टेक्निकल मैनेजमेंट ऑफ ओवरऑल एंटिटीज, कंपोनेंट, प्रोग्राम, डिजाइन एक्सेट्रा। ओके चलो आगे चलते हैं। रिगार्डलेस ऑफ एंटिटी टू बी engineered, the following question must be asked and answered। जब आप एंटिटी को engineered, engineered का मैं बार बार जो वर्ड यूज कर रहा हूं engineered यानी कि टू प्रोड्यूस समथिंग, सॉफ्टवेयर के टर्म्स में आपको उसे कंसिडर करना है कि एंटिटी जो है सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, तब ये सारे क्वेश्चंस जो वो रेज्ड होंगे। अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि जब आप सिस्टमेटिक अप्रोच लगाओगे सॉफ्टवेयर के अंदर तो कौन से क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। चलो देखते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड? यस, कौन से प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसे ऐसा बहुत टाइम हुआ है, इवन यू नो देयर आर दिस थिंग हैपन व्हेन यू जॉइन द कंपनी। आपको के साथ ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है, लिख के रखो। आपको आपका प्रोजेक्ट लीडर टास्क जब असाइन करेगा, जब समझाएगा कुछ, आप समझोगे कुछ और डेवलप कुछ और कर दोगे। दैट इज कंप्लीटली इररिलेवेंट टू द सॉफ्टवेयर। समझ में आया ना? सो दैट्स व्हाई ये क्वेश्चंस को आपको थॉरली समझना है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, कौन से प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटिटी आर यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम? वो जो एंटिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक पहले आपको समझना है और फिर उसे किस तरह से हमें सॉल्व करना है वो समझना, क्योंकि कोई एंटिटी को पहले समझना है कि एक्जेक्टली वो क्या है, तब जाके आप सॉल्व करोगे प्रॉब्लम को, राइट? देन हाउ विल द एंटिटी एंड द सॉल्यूशन बी? क्या है, कैसे वो एंटिटी है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ओके उसके ऊपर आपको वर्कआउट करना है। नेक्स्ट इज हाउ विल द एंटिटी बी कंस्ट्रक्टेड? वो एंटिटी को हम कैसे डेवलप करेंगे, उसके लिए प्लानिंग करना है। व्हाट अप्रोच विल बी यूज टू अनकवर एरर दैट वर मेड इन अ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द एंटिटी? जब भी आप डेवलपमेंट करोगे, डिजाइन करोगे, तो आपको पहले कौन सा अप्रोच लगाना है कि भाई कोई एरर रह तो नहीं गई है। आप कौन सा अप्रोच लगाओगे जिसके अंदर से आपको पता चलेगा कि भाई कोई अनकवर एरर रह गई। अनकवर एरर मतलब कोई एरर अभी भी है जो कि आपके ध्यान में नहीं आया है, उसको फाइंड करेंगे तो उसे बोलते हैं टू फाइंड द अनकवर एरर। तो उसके लिए बहुत सारे अप्रोचेस है, वी विल डिस्कस लेटर। हाउ विल द एंटिटी सपोर्टेड over the long term when correction, adaptation, enhancement are requested by the user of the entity? Here entity means computer software, obviously पता है हमें। तो कहने का मतलब ये है कि लेटर ऑन व्हेन क्लाइंट साइड से कुछ करेक्शन आया, एडॉप्शन मतलब कुछ एड ऑन करने के लिए आया, एनहेंसमेंट मतलब कुछ आप कोई एपीआई आपको ऐड करने के लिए बोला, तो तब आप जो है किस तरह से आप सपोर्ट करोगे लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट तो कभी भी चेंज हो सकती है, कभी भी मेंटेनेंस आ सकता है, ओके तो तब आप किस तरह से करोगे। तो जब आप ये क्वेश्चन का आंसर फाइंड करोगे तो इन फ्यूचर आपको डेवलपमेंट के टाइम पे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के
जेनेरिक फेजेस, कितने कितने फेजेस है. To work associated with the software engineering can be categorized into three generic phase. स्टूडेंट इतना माइंड में सेट करके रखिएगा कि ये तीन फेज में से कोई भी पर्टिकुलर एक फेज के लिए क्वेश्चन आना ही है. लिख के रखो. या तो डेफिनेशन फेज के लिए आएगा, ये वाला डेफिनेशन फेज के लिए आ सकता है, डेवलपमेंट फेज के लिए आ सकता है, या फिर सपोर्ट फेज के लिए आ सकता है. बहुत ही अच्छे से हम इसको डिस्कशन करेंगे. ओके, चलो बात करते हैं आगे कि थ्री कैटेगरी है, थ्री फेजेस है. एप्लीकेशन एरिया के लिए रिगार्डलेस ऑफ एप्लीकेशन एरिया, प्रोजेक्ट साइज और कॉम्प्लेक्सिटी, ईच फेज एड्रेसेस वन और मोर क्वेश्चंस नोटेड प्रीवियसली. जो हमने लास्ट स्लाइड में जो क्वेश्चंस देखे थे ना, तो उसके सारे सॉल्यूशन आपको यहाँ पे वन बाय वन फेजेस में आपको मिलेंगे. ओके, डेफिनेशन फेज, डेवलपमेंट फेज एंड सपोर्ट फेज. ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट सेशन में हम वन बाय वन फेजेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे. टिल देन, बाय, टेक केयर.